امریکہ کی گولڈن سٹیٹ کہا جانے والی ریاست جسے آج ہم کیلیفورنیا کے نام سے جانتے ہیں پر قریب 45 سال پہلے یہاں پھیلا ایک ایسے آدمی کا خوف تھا کہ جس نے صرف کیلیفورنیا ہی نہیں بلکہ پورے امریکہ میں ایک ڈر کا ماحول بنا دیا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا کہ جس کے خوف کی وجہ سے مرد، عورتیں، فارم ورکر اور بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر اپنے گھر سے نہیں نکل پاتے تھے۔ یہ وہ آدمی تھا کہ جس نے 36 مرڈر کیے اور اس کے 36 مرڈر اور مختلف کیسز نے پولیس ایڈمنسٹریشن کی قابلیت پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگا دیا تھا، اور اس آدمی کو گرانے کے لیے 3 ڈیفرنٹ سٹیٹس کی پولیس کو تقریباً 30 سال لگیں گے۔ یہ کہانی ہے اس آدمی کی جس کا نام ہے ہوزے مینوئل مارٹینز ایل مانو نیگرا دا بلیک ہینڈ، دا امریکاز ڈیڈلیسٹ ہٹ مین۔ مارٹینز 1962 میں کیلیفورنیا کے شہر فریزنو میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک امریکی شہری ہے لیکن وہ 11 سال کی عمر تک نارتھ امریکہ کے شہر میکسیکو میں پلا بڑھا۔ اس کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیلیفورنیا کے ایک شہر ٹولیرے کے قریب ایک کھیت میں چلا گیا۔ اس وقت ٹولیرے کیلیفورنیا کی ایک غریب ترین کمیونٹی تھی۔ مارٹینز کا اسٹیپ فادر شراب کی فیکٹری کے لیے مزدوروں کو اکٹھا کرتا ہے اور ایک سائیڈ بزنس کے طور پر ڈرگز کا کاروبار کرتا ہے۔ 14 سال کی عمر میں مارٹینز کو بس کے ذریعے اپنے پہلے ڈرگ کوریئر کے سفر پر بھیجا جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے سفر کے لیے کار کا استعمال کرتا ہے۔ 1971 میں پولیس نے اس کے خاندان کے کھیت پر چھاپا مارا اور پولیس نے $2.5 ملین ورتھ کی ہیروئن اور مختلف ویپنز ضبط کر لیے۔ پھر 1978 میں جب اس کا اسٹیپ فادر زیر حراست تھا تب اس کی بہن سسلیا کو قتل کر دیا گیا۔ اپنی بہن کے قتل کے بعد ہوزے مینوئل مارٹینز نے کہا کہ وہ ایک اچھا آدمی تھا جب تک کہ انہوں نے اس کی بہن کو قتل نہیں کیا تھا۔ تب اس نے کہا فک دا ریپرز اینڈ دا چائلڈ مولیسٹرز، اور اس نے ایسا ہی 1979 میں کیا۔ ہوزے مینوئل مارٹینز نے پہلا قتل ڈیوڈ بڈویا کا کیا۔ ایک دوست مارٹینز کو بتاتا ہے کہ ڈیوڈ بڈویا نے اس کی بہن کا ریپ کیا ہے۔ یہ سن کر مارٹینز نے ڈیوڈ بڈویا کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد مارٹینز کو ڈیوڈ بڈویا کے قتل کے بدلے میں $500 کی آفر کی گئی۔ مارٹینز نے اس آفر کو قبول کیا اور 1980 میں اس نے ڈیوڈ بڈویا کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا جب وہ اپنی وائف اور دیگر 2 لوگوں کے ساتھ کام پر جا رہا تھا۔ تو اس طرح مارٹینز نے اپنا پہلا قتل پیسوں کے لیے کیا۔ 1982 میں مارٹینز کی ملاقات ایک میکسیکن ڈرگز کارٹل سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی سے ہوئی جس کا نام سینالوا تھا اور وہ اسے مسٹر ایکس کے نام سے پکارتے تھے۔ مسٹر ایکس میکسیکو سے کیلیفورنیا کے راستے ڈرگز کی ایک بڑی مقدار منتقل کرنے میں ملوث تھا۔ اس نے مارٹینز کو لوگوں کو قتل کرنے کی ڈیفرنٹ جابز دیں۔ مسٹر ایکس کی ہر جاب کا تعلق ڈائریکٹلی کسی کے مرڈر سے نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر اوقات مارٹینز کو چھوٹے پیمانے کے ڈرگ ڈیلر سے قرض کلیکٹ کرنے کا کام سونپتا تھا۔ مارٹینز فون کالز یا شارٹ پرسنل میٹنگز کے ذریعے اپنا کام وصول کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ چھوٹے ڈرگ ڈیلرز کو یہی کہتا کہ میں آپ کو ڈرگز پرووائڈ کرتا ہوں اور آپ آگے ان کو فروخت کریں اور اس میں سے کچھ رقم مجھے واپس کر دیں، لیکن اگر آپ میرے سے ڈرگز لے کر رقم واپس نہیں کریں گے تو پھر مارٹینز خود جا کر رقم کلیکٹ کرے گا، اور اس طرح وہ ڈرگز کا بلیک بزنس کرتا تھا۔ اس کے بعد ویلدی پرسن مسٹر ایکس نے ایک سلویسٹر آیون نامی آدمی کے قتل کے عوض میں $2500 میں مارٹینز کو ہائر کیا۔ اور یاد رکھیں کہ سلویسٹر آیون ایک ایسا شخص تھا جس پر میکسیکو میں ایک پارٹی میں کچھ مردوں کے قتل کا الزام تھا۔ مارٹینز نے بالآخر آیون نامی آدمی کو گولی مار کر قتل کر دیا اور اس نے اس مرڈر کے بدلے میں $2500 کمائے۔ نومبر 2006 میں مسٹر ایکس نے مارٹینز کو فلوریڈا بھیجا کیونکہ ایک 20 سالہ لڑکی ہیویر ویٹا نے اس کی $1,70,000 مالیت کی 10 کلو گرام کوکین چوری کی تھی۔ مارٹینز کچھ دنوں تک ہیویر ویٹا پر گہری نظر رکھتا ہے اور پھر اس نے اس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور بالآخر اس نے ہیویر ویٹا اور اس کے ساتھی کو 4 بار گولی مار کر قتل کر دیا اور ان کے ہاتھوں کو زپ اور ٹائیوں سے باندھ دیتا ہے اور ان کی لاشوں کو ہیویر ویٹا کے ٹرک میں ڈال دیتا ہے، اور وہ کار کو نیشنل پارک کے ارد گرد چلاتا ہے اور شاید پرسکون ہونے کے لیے سگریٹ پیتا ہے۔ یہ قتل کرنے کے بعد مارٹینز ڈائریکٹلی الاباما میں اپنی بیٹی کے گھر پرواز کرتا ہے۔ اس وقت اس کی گرینڈ ڈاٹر اپنی برتھ ڈے منا رہی ہوتی ہے اور وہ یہاں پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے جو اس نے اسے خوش کرنے کے لیے کمایا تھا۔ To make her happy. I got her. I took her to Toys R Us, where a kid can be a kid. I told her, babe, because I love you with all my heart, me and you, we're gonna walk in the store
And for 1 hour, you can pick whatever you want. Okay? इसके बाद फ्लोरिडा में इन्वेस्टिगेटर्स ने 2 डेड बॉडीज के साथ वेटा का ट्रक दरियाफ्त किया। उन्हें गाड़ी के बीच में एक माउंटेन डियो कैन सिगरेट के बट के साथ येलो ग्रीन लिक्विड के पडल में पड़ा हुआ मिलता है। वो सिगरेट के बट को डीएनए के निशानात की चेकिंग के लिए लैब में भेजते हैं, लेकिन टेस्ट फौरन नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर तशखीस शायद कोई बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। हावियर वेटा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था और उसके साथ कार में दूसरे साथी वर्कर्स भी थे, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स को इस केस में कामयाबी की उम्मीद बहुत कम थी। इसके बाद 2009 में मार्टिनेज ने अर्ली मार्च में एक वाकिन बारागान नामी आदमी को $8,000 में कत्ल कर दिया। कत्ल करने के 3 दिन बाद बारागान की डेड बॉडी एक कंबल के नीचे से मिली और उसके हाथ पांव जिप और टाइयों से बंधे हुए थे। पुलिस ने अर्ली मार्च में बारागान के कत्ल के बारे में बहुत से लोगों से पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि बारागान पहले से जानता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर उसका ताक़ुब कर रहा है, जो एल मानो नेग्रा द ब्लैक हैंड के नाम से जाना जाता है। फिर एक औरत उन इन्वेस्टिगेटर्स को बताती है कि एल मानो नेग्रा मार्टिनेज का निकनेम है। इसी तरह इन्वेस्टिगेटर्स के पास मार्टिनेज के अगेंस्ट कोई इनफ एविडेंस नहीं है कि वो इसके खिलाफ अभी कार्रवाई कर सकें, लेकिन इसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेटर्स को इकदाम उठाने का डिसाइड करते हैं। पुलिस ने मार्टिनेज को प्रोबेशन की वायलेशन करने पर अरेस्ट कर लिया, लेकिन जब वो उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो वो अपना फोन निकालता है और सिम कार्ड को निकाल कर निगल लेता है। तो इस तरह वहाँ पर मौजूद कोई और चीजों से मुजरिम नहीं ठहरा सकती। जब पुलिस ने मार्टिनेज से कत्ल की पूछताछ की तो मार्टिनेज बोला कि अर्ली मार्च में मौजूद हर शख्स झूठ बोल रहा है और ये कि उसने बारागान का कत्ल नहीं किया। लेकिन फिर पुलिस मार्टिनेज को वायलेशन ऑफ प्रोबेशन टर्म्स पर जेल भेज देते हैं। तकरीबन 1.5 साल बाद जब मार्टिनेज जेल से बाहर निकलता है तो वो डायरेक्टली टुलेरे काउंटी शेरिफ्स ऑफिस के वायलेंट क्राइम डिवीजन की तरफ जाता है। वो अपना वाइट शेवी सबर्बन कार वापस चाहता है जो पुलिस ने उससे छीन लिया था। मार्टिनेज अपनी कार के बदले में पुलिस से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पर राजी हो जाता है। मार्टिनेज ने इशारा दिया कि वो वेस्टर्न मैक्सिको के एक सिटी ग्वाडलाहारा से मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स का कलेक्टर है और वो ये जानने का भी दावा करता है कि बारागान को कर्ज की वजह से कत्ल नहीं किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को उसकी बातों पर शक होता है और वो लाई डिटेक्टर टेस्ट का मशवरा देते हैं। जबकि ये टेस्ट झूठ पकड़ने के लिए एक टेक्निकली वैलिड वे नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका इस्तेमाल करेगी। मार्टिनेज पुलिस की इन बातों पर इत्तफाक करता है। मार्टिनेज से कई बार पूछा गया कि बारागान को किसने मारा। मार्टिनेज यकीनन इस बात से इनकार करते हैं कि उसने उसे मारा है। लाई डिटेक्टर्स जवाबन यही कहते हैं कि मार्टिनेज के आंसर्स क्लियर हैं। ये टेस्ट करने के बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ बंधे हुए हैं और वो मार्टिनेज को जुर्म के इतराफ के क्लियर एविडेंस के बगैर नीचे नहीं लगा सकते और न ही मार्टिनेज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई इनफ एविडेंस नहीं मिले। आखिरकार मार्टिनेज द ब्लैक हैंड एक बार फिर पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स की गिरफ्त से निकल गया। सिगरेट का बट अभी भी लैब में मौजूद है। फ्लोरिडा में पुलिस के पास हैंडल करने के लिए और भी कुछ केसेस होते हैं और वो इस ट्रक में मौजूद लाशों को भूल गए। इन सारे वाकयात के बाद कुछ ऐसा लगता है कि मार्टिनेज हमेशा के लिए अपना ये मर्डर्स का काम जारी रख सकता है और कोई उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन फिर यूएस स्टेट एलबामा में अचानक कुछ ऐसा होता है कि 2013 के आगाज में मार्टिनेज अपनी बहन के कत्ल के 35 साल बाद और डेविड बडोया के कत्ल के 33 साल बाद अब वो 51 ईयर्स के हैं। वो एक बार फिर एलबामा में अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वहाँ वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ काफी वक्त गुजारता है और एंजॉय करता है। मार्टिनेज की बेटी जानती है कि उसका बाप एक क्रिमिनल है, लेकिन वो सोचती है कि वो सिर्फ एक स्मगलर है जो लोगों को सरहद पार से अमेरिका लाने में मदद करता है। अपनी बेटी के घर में रहते हुए मार्टिनेज को ख्याल आया और उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी के पार्टनर के एक फ्रेंड को कर्ज जमा करने में हेल्प की जरूरत है और वो उसकी मदद करेगा। लेकिन इन रियलिटी वो फ्रेंड से अपनी बेटी के पार्टनर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता है, जिसका नाम है जायमी रोमेरो। इसके बाद मार्टिनेज की मुलाकात होजे रुइज नामी एक दोस्त से हुई। कार में मार्टिनेज ने होजे रुइज से अपनी बेटी के पार्टनर जायमी रोमेरो के बारे में पूछा। रुइज का कहना है कि जायमी रोमेरो ठीक आदमी है, लेकिन वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के नाम और एक टेरिबल मदर के नाम से पुकारता है। होजे रुइज को एहसास नहीं होता कि ये मार्टिनेज की बेटी है, इसलिए मार्टिनेज ने उसको मुआफ करने का फैसला किया, ये समझते हुए कि हम सब इंसान हैं और हम गलतियां कर सकते हैं। और मार्टिनेज सब्र से रुइज से कहता है कि अरे मैं इसका बाप हूँ और ये मेरी बेटी के बारे में बात करने का कोई तरीका नहीं है। बात करने
करने की कोई तमीज होती है। लेकिन इसके बाद मार्टिनेज ने रुइज को मारने का फैसला किया, लेकिन अभी नहीं। लोगों ने उन्हें एक साथ देखा, लिहाजा वो उस वक्त कैलिफोर्निया में वापस आ गया और रुइज को जमीन पर मजीद चंद हफ्ते जिंदा रहने की इजाजत दे दी। 4 मार्च 2013 को मार्टिनेज वापस आ गया और वो जेमी रोमेरो और होजे रुइज के साथ एक छोटे से टूर पर जाता है। वो दूर दराज के एक नेशनल पार्क में थोड़ी देर क्याम के लिए रुक जाते हैं। मार्टिनेज ने बंदूक निकाली और रुइज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ए कमीने इंसान, जिस औरत की तुमने तौहीन की है वो मेरी बेटी है। फिर मार्टिनेज ने उसके सर में गोली मार दी। मार्टिनेज गाड़ी में वापस आता है और हैरान रोमेरो से कहता है कि वो गाड़ी ड्राइव कर ले और बेहतर है कि वो इसे अपने पास रख ले। पुलिस ने फौरी तौर पर डेड रुइज को दरियाफ्त किया। वो निगरानी वाले कैमरों को इस्तेमाल करके रुइज के साथी रोमेरो की शिनाख्त करते हैं। होजे रुइज को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर उन्हें कत्ल का शक है। थोड़ी देर बाद मार्टिनेज ने पुलिस से राब्ता किया और ये दावा किया कि वो कत्ल के वक्त रोमेरो के साथ थे, लेकिन पुलिस इस पर यकीन नहीं करती और रोमेरो जेर हिरासत है। इसके बाद टीजे वाट्स नामी एक जासूस उस कत्ल का मुकदमा चलाता है, लेकिन काफी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद उसे कुछ खास एविडेंस नहीं मिले। मीनवाइल जेमी रोमेरो अभी तक अलबामा की कैद में बंद है, जो अपने दोस्त होजे रुइज के मर्डर के इल्जामात का सामना कर रहा है। वो अपने फादर इन लॉ से भी बहुत खौफजदा है, लेकिन जेमी रोमेरो ने एक दिन तंग आकर जासूस मैक वर्टर को बुलाता है और सारी बात करता है कि ये कत्ल मार्टिनेज ने किया है। और बिल आखिर 17 मई को इन्वेस्टिगेटर्स ने सेवरल मर्डर्स के इल्जाम में मार्टिनेज की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। जब वो मेक्सिको के सफर से वापस अमेरिका आता है तो मार्टिनेज को एरिजोना में अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे मालूम होता है कि उसके लिए मर्डर के वारंट जारी हैं। मार्टिनेज का वाहिद सवाल यह है कि ये वारंट कहां से आए। मैकवर्टर वो पहला आदमी है कि जिसने मार्टिनेज की सरहद पर गिरफ्तारी के बारे में सुना। वो जाती तौर पर उसे वापस लाने के लिए एरिजोना के लिए रवाना होता है। मैकवर्टर इस बात पर बहुत हैरान है कि मार्टिनेज को अपने मर्डर के इल्जाम ऐड करने की कितनी कम परवाह है। एलुबामा पहुंचने पर उनसे जासूस वर्ड्स मिलते हैं और न ही जासूस मार्टिनेज से उस कत्ल का इतराफ करने की तवक्को रखते हैं कि शायद वो कुछ वक्त जेल में गुजारे, फिर अंदर से फोन कॉल के दौरान कोई गलती कर बैठे। एट बेस्ट मार्टिनेज जुर्म के मकाम पर होने का एतराफ तो कर सकता है, लेकिन हर चीज का इल्जाम रोमेरो पर डालने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक चीजें मुख्तलिफ मोड़ लेती हैं और मार्टिनेज ने तकरीबन फौरन ही रुइज के कत्ल करने का एतराफ कर लिया। उसने फ्लोरिडा में कत्ल केस का एतराफ भी किया। वो सारे क्राइम सीन और इस्तेमाल होने वाली बुलेट्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है और कहता है कि अगर मैंने ये काम ना किया होता तो कोई और करता। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद वो एक के बाद एक मर्डर का एतराफ़ करता चला जाता है। मेरा मतलब है कि मर्डर्स की एक लॉन्ग लिस्ट थी। उसने 36 मर्डर का एतराफ़ किया। इसके बाद उन्होंने तमाम मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने ये बात यकीनी बनाने की कोशिश की कि ये जो कुछ कह रहा है सच है। इसके बाद उसे सजाए मौत की सज़ा दी गई। मार्टिनेज को उसके बहुत सारे मुकदमात की समाअत में बुलाया गया, लेकिन वो सारे केस मर्डर से मुतल्लिका नहीं थे। कुछ और नोयती केसेस भी थे। उसके कुछ केसेस हल न हो सके। इस वक्त उसे मौत की सजा का भी सामना है, लेकिन मार्टिनेज को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। आखिरकार मार्टिनेज को रुइज के कत्ल के जुर्म में एलुबामा में 50 साल कैद की सजा सुनाई गई और कैलिफोर्निया में 9 मर्डर्स के जुर्म में जमानत के इम्कान के बगैर उम्र कैद की सजा और फ्लोरिडा में 2 कंसेक्टिव लाइफ सेंटेंसेस की सजा सुनाई गई। मार्टिनेज ने यकीनी तौर पर पुलिस के लिए अपने आप को इतना आसान नहीं बनाया। उसने कुछ निशानात छोड़े बगैर किसी ठोस एविडेंस के, और एक डेडलिएस्ट हिटमैन के तौर पर उसके और उसके मुतासरीन के दरमियान अमूमन कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होते थे। तो ये सारी कहानी एक अमेरिका के डेडलिएस्ट हिटमैन होजे मैनुएल मार्टिनेज की थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।